Good morning, dear student. Now start class 11 and the bio groups, biology, chapter 2, biological classification, part 5 in 5 video. Already you know that 5 kingdom system, one repeat, so Monera, Protista, fungi, plantae and animal. Already explain of Monera, bacterial group of kingdom, and then next kingdom Protista, one cell organisms, only one cell organism. So and unicellular and eukaryotic, unicellular and eukaryotic, and next multicellular and eukaryotic. So now this kingdom are eukaryotic, yani complete nucleus found in region of cell. Now start a Protista. All single-celled eukaryotes are placed under Protista, and another many type of projection of different species in Protista, and then another divide, yani group and divide. Another further divide in group of Protista. So name, and the first name Crypsophyte, and ancient one cell organism as a very important point. Found a one cell organism diatoms found in ocean bed, and very economical base of atom, diatom, and golden algae, one cell organisms. In this group organism diatoms, first for all one cell की organism हमारे समुद्र के अंदर उसके बेड यानी नीचे के जो बेड पर बना, बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल क्रस्टेस सेल फाउंड इन कवर वॉल, एंड नो डिजेनरेट, नो डैमेज, यानी जैसा रहेगा ये डायटम्स वो वैसा ही पड़ा रहता है बेड, सी बेड के नीचे. नाउ स्टार्ट एंड नेक्स्ट डाइनोफ्लैजिलेट, red sea due to the red algae found in this group of dinoflagellates, group of Protista. I hope you understand. Euglenoids, and third group of Protista, euglenoids. An important part, green and photosynthetic egg euglena, and a green color. Euglena is plant or animals? No, both character. Plant and animal के दोनों कैरेक्टर अपने आप में रखा रहता है, यानी स्पेशल, यानी इसे हम कहेंगे कनेक्टिव लिंक,
कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी यहीं से प्लांट से एनिमल बनने की प्रक्रिया शुरू हुआ। एक चीज हम आप लोगों को कह दें कि जो भी क्लासिफिकेशन चल रही है, यानी क्लासिफिकेशन आई मीन्स सिस्टम, सिस्टमेटिक एंड मीन्स डेवलपमेंट सीक्वेंस एंड मीन्स विकासीय, कैसे कैसे जीवों का पृथ्वी पर विकास हुआ है, उसके हिसाब से आपको क्रम से यानी सीक्वेंस से आपको बताया जा रहा है। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ों को अगर हम एजुकेशन ले पढ़ते हैं तो पहले हम उसकी उस एजुकेशन के आधार पर, बेस पर, हमारे उस सराउंडिंग क्लाइमेट में हम पहुंचते हैं, यानी वो चीज़ हम देखे हैं कि नहीं देखे हैं, या हम उस बाहरी चीज़ का मंडल हम मैचिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जागृत यानी एजुकेशन कहीं भी लिया जा सकता है। एजुकेशन बाय देखकर, सुनकर, पढ़कर एंड थिंक, सोचकर। तो सो आई नाउ दिस नेक्स्ट एन एग्लिना एग्जाम्पल पैरामिस एंड अदरवाइज एंड लिंक प्लांट एंड एनिमल, विकासीय के आधार पर इनको लिंक कहा गया है। एंड स्लिमोइड्स एंड अनदर ग्रुप ऑफ स्लिम फंजाई एंड प्रिमिटिव फंजाई, यानी सबसे पहले इन्हीं से फंजाई का उत्पत्ति हुआ, यानी फिर फंजाई की तरह इसके अंदर जो है काफ़ी कैरेक्टर होंगे, यानी सिंप्लाई फंजाई। लास्ट प्रोटोजोअन्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिस ग्रुप एंड अमीबा, पैरामीशियम, ये प्लाज्मोडियम, so on. And according to book in NCERT, and explain this topic, chrysophytes. This group includes a diatom and golden algae. They are found the fresh water as well as marine environment. Fresh water and marine water, salty water, and fresh water no salty. So they are microscopic. These diatoms and microscopic means सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म, and microscopic and float passively in float वाटर करंट की साथ साथ फ्लो करंट प्लेकेंटॉन्स एंड प्लेकेंटॉन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आर कॉल्ड प्लैंकेटॉन. नाउ मोस्ट ऑफ देम आर photosynthetic in diatoms. The cell walls far too thin, overlapping cells and hard cells which fit together at a soft box. and soft box की तरह, यानी soft box एक ये है और इसी के अंदर ये बना हुआ soft box, यानी अंदर भी hard कवच और बाहर भी hard कवच. So the wall of imbedded में धंसा होना, imbedded with silica a metal, non-metal metal. Silica a special atoms and very hard and very economical base for mankind. So next, thus the wall are indestructible. Thus diatoms have left behind billions of years. Billions of years is referred to a diatomaceous earth. Being greeting this cell used in polishing
filtration of oil and syrup. Diatom are the chief producer in the oceans. Now कह रहा है कि इनके बॉडी पर बिल्कुल हार्ड कवच रहता है और बीच बीच में सिलिका जो है धसे होते हैं, और ये इनकी मात्रा काफ़ी लंबे समय तक है, लिखा है एंड बिलियंस ईयर एगो से ये लगातार सी के अंदर बन रही है, और क्या बोलते हैं एक पर्वत की तरह एक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो जा रही है, उस तरह वो इकट्ठा हो जाते हैं डायटम्स। और इसका उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों में पॉलिश की बात किया गया है, फिल्टरेशन की बात किया गया है, एंड सिरप, जैसे सिरप है, इसका मुख्य चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, यानी ये समुद्र में ही बनता है। नाउ एंड ऑलरेडी नो क्रिसोफाइट एंड स्पेशल डायटम्स फर्स्ट वन सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ओशियन ऑफ बेट। So very important diatoms favor of mankind. And now and second group of dinoflagellate, and dinoflagellate mostly marine and photosynthetic, marine साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक एवरी अपीयर येलो एंड ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, रेड, इस टाइप के पिगमेंट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन कलर स्पेशली क्लोरोप्लास्ट। रिविजन एंड बैक क्लास, chloroplastid and overall the plastid three types, and the first plastid chloroplast green color, only green color chloroplast, generally हम लोग के एरिया में ग्रीन क्लोरोप्लास्ट, एंड क्रोमोप्लास्ट नेक्स्ट प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट, ऑल कलर इंक्लूड एक्सेप्ट ग्रीन को छोड़कर सभी कलर, एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस स्टोर फूड इन रूट एंड स्टेम। सो थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड एंड photosynthetic, depending on the main pigment present in their cell pigment word, the cell wall, the main pigment steep, and the cell wall steep cellulose plates on the outer surface. Most are can two flagella and one lies longitudinal and the have two flagella and one longitudinal and the one transverse longitudinal and transverse flagella। झंडी की तरह कोई जीव है, इसे फ्लैजिला लग गया है, और फ्लैजिला एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, फरो यानी बीच में दरारें, फरो वॉल प्लेट्स। रेड डाइनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल कोनिलेक्स and very difficult word found in biology books, so बड़े ध्यान से उस उच्चारण को समझना है। गोनियुलेक्स undergo such a rapid multiplication they are make the sea appear red tide. So toxic released by such large number are very kill the marine animals such as fishes, and means कि रेड एल्गी यानी रेड पिगमेंट की वजह से समुद्र लाल होते हैं, यानी
प्रकाश की किरणें जब पड़ते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन के माध्यम से पूरी तरह से रेड टाइड दिखता है एंड क्रिएट ए टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिन विष पॉइजन्स, एंड इसके वजह से टॉक्सिक चीज़ों के निकल जाने की वजह से वाटर की बॉडी के अंदर बाकी और फिश मर जाती हैं डाई करने से। नो सर्वाइव इन दिस एरिया एंड रेडियली एंड सो डायनोफ्लैजिलेट के एरिया में अन्य फिश नहीं होंगे या होंगे तो उसको सर्वाइव कर रहा होगा या उस चीज़ से लड़ रहा होगा जिससे वो हो सकता है ना। मिनिमम नो फिश फाउंड इन दिस एरिया एंड रेडियली। सो I hope understand। जो भी हो बड़े बारीकी से इस क्लीनिंग शॉट भी लेने का प्रयास करते रहें। तो सो डायनोफ्लैजिलेट पायरोफाइटा एल्गी, इसी को पायरोफाइटा एल्गी कहते हैं, कलर पिगमेंट so red algae। and next euglenites, majority of them are fresh water, majority यानी कि संख्या बहुत ज़्यादा फ्रेश ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टाग्नेंट वाटर, रुका हुआ वाटर, and instead of the cell wall they had the protein rich layer called pellicle, यानी कुछ खास इनके बॉडी पर एक आवरण यानी एक आवरण होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, या विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, यानी इसी से इसकी बॉडी में फ्लेक्सिबल है, यानी कहीं ना कहीं वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, टेढ़े मेढ़े जैसे भी फ्लेक्सिबल एंड पेलिकल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन दिस यूग्लिना ग्रुप एंड प्रोटिस्टा make their body flexible। they have two flagella and so figure है माउथ मुंह कैविटी एंड फ्लैजिला एंड टू फ्लैजिला, ऐसे जगह जगह क्लोरोफिल स्पॉट, क्लोरोफिल एंड न्यूक्लियस। सो यूग्लिना वेरी सिंपल एंड बॉडी pellicle so flexible। Euglena this picture, so a short and a long, two flagella and one short and one long, though they are photosynthetic in the presence of sunlight। When and derived of sunlight behave like heterotrophs by predating another smaller organism intentionally। the pigment of euglenites are identical those present higher plant, example euglena। now euglena के अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल है ना, आजकल के जो पेड़ पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है ना, काफी मैचिंग करता है। एंड नेक्स्ट फीडिंग ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ बोथ। कभी कभी भोजन के ना होने की वजह से, न बनने की वजह से कुछ दूसरे जीवों को भी छोटे छोटे को ये टेक करता है ना, हेटेरोट्रॉफिक। सो एंड थर्ड यूग्लिनाइट group of protista and two group of protista slimoids and protozoans, क्योंकि protozoan further divide into many groups according to a different type of projection found in this organism. तो next video make a and last फेयर कॉपी बनाते रहें, आप नोट्स बनाते रहें। आई वांट टू क्लोज माय टॉपिक, सो थैंक यू।